a huge applause for Dr. Chandra. Come on the stage, Dr. Chandra. उम्मीदें हंसे उनकी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। In our day-to-day life, we are not able to come out and break that comfort zone. So my question is how we can break that comfort zone and how we can do more than we wanted to do. आपको पूछना पड़ेगा अपने आप को कि आप कंफर्ट जोन में क्यों हैं। अरे यार कोई जल्दी नहीं है ना, कल कर लेंगे ना, इसलिए कंफर्ट जोन में है। जैसे आपको झटका लगा कि केवल 24 घंटे बचे हैं, तो उस कंफर्ट जोन से निकल आए, आपने एक्ट करना शुरू कर दिया। जब आपको पता लगा कि आखिर के 24 घंटे बाकी हैं, तो मौत का डर खत्म। और जब डर नहीं है, आपका जो भी एक्शन, जो काम करेंगे, that will be dynamic action. So you're effectively saying, live each day as though it were the last day of your life. Absolutely. And As you will opposed to see, being, what I was confused, as opposed to thinking about each day is the first day of the rest of your life. Treat each day as possibly the last day of your life. because only when you say that today is going to be my last day is when you will think that tomorrow is first day of my life. Sir, I'm saying that the need for acceptance that we have, don't you think that it's because of the culture that we are from, that from the very beginning, from our childhood, we have not been independent. There always has been someone to hold us, to protect us. For example, whenever a child falls, the mother is always there to protect him or her. So that might be the reason that we still, even though we grew up, a person who is 40 years old or 50 years old, we still have this feeling that, we have to have acceptance what others would feel about my actions. So don't No, you... no, not necessarily. It's a good question though. Your question is that because we get protection right from our childhood, then we become very, very conscious and we become sensitive that we don't speak up our feelings. That's what you want to say. But if you don't speak up, then you are not truthful to the other person who loves you. I wrote to this gentleman, this boy who wrote to me that his father always scolds him. He is always angry with him. मैंने उसको लिखा कि भैया, first of all, आप अपने मन में ये विश्वास करो कि वो बाप ने आपको इस ज़िंदगी में लाया. He is responsible for giving you birth. Are you feeling indebted to that? Do you feel that he did a good thing by bringing you? Say yes. Then be grateful to him. Go and tell him to your father कि sir, I am grateful, Papa, that you have brought me in this life और आपने जो कुछ मुझे पढ़ाया लिखाया अभी यहाँ तक किया. और सुबह मैंने कहा अगर आप, मुझे नहीं पता किस फेथ को बिलीव करते हो, लेकिन सुबह में जाके रोज़ उनको रेस्पेक्ट करो, नमस्कार करो, चाहे पाँव छुओ, चाहे जैसा भी करो, आदाब कहो, गुड मॉर्निंग कहो, जो भी आप मानते हो, और उनकी कुछ अच्छी बातें याद करो. उनको जब आपको अच्छी बातें ध्यान आए तो वो उनको कहो कि आपने यू डिड गुड थिंग. आज आपने मम्मी को कुछ गिफ्ट ला के दिया उनके बर्थडे पर या उनकी शादी की सालगिरह पर, कुछ भी वो अच्छा करें, उनको तारीफ़ करो. और मैंने कहा उनको कि अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे लिखना क्या रिजल्ट है. एंड बिलीव यू मी, आई हैव द रिकॉर्ड. विद इन 1 week दिस बॉय राइट्स बैक that we are now best of friends between each other. Unless you express your feelings, it will be not honest to live your life. Then, as a professor said, that you don't know how a family will remember you after you have gone. Only if you communicate them well what you are, then only they will remember you what you are. हाँ, अगर लास्ट 24 घंटे मेरे पास होते, मैं सोचा भी आधे घंटे से सोच रहा था कि क्या करूँगा. मैं अपने आप से पूछूंगा कि कोई अफसोस है ज़िंदगी में. मुझे उम्मीद है मैं बोलूँगा नहीं. उसके बाद डायरेक्ट अपने पेरेंट्स के पास जाऊँगा, उनके पैर छूँगा, उनसे बोलूँगा चलो ठीक है,
बहुत अच्छा लगा, रहे साथ। अब मैं चला, मैं उसके बाद जब वापस आऊँगा तो लंच करना उन लोगों के साथ पसंद करूँगा जो लोग कभी किसी 5 स्टार होटल में लंच नहीं कर पाए, किसी अच्छे नॉर्मल रेस्टोरेंट में लंच नहीं कर पाए, जो लोग सड़क पे रहते हैं, उन्हें अपने साथ लेके जाऊँगा, उनके साथ लंच करूँगा। और फिर रात को तो ऑब्वियसली अपने साथ ही अपना अकेला टाइम स्पेंड करूँगा कुछ घंटे, और वो दिन ख़त्म हो जाए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे डर था मैं खड़े होके बोलूँ, कैसा लगेगा, अजीब लगेगा। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि सोच ये लास्ट 24 घंटे हों तेरे, बोल ले। मैं कहा चलो यार ये भी करके देख लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा इसमें। तो आपका डर खत्म हो गया अब? ख़त्म है ही, डर है ही नहीं मुझे उस चीज़ का कि मैं कल मर गया तो मुझे कुछ अफसोस नहीं कि मैंने आज जितना टाइम स्पेंड किया है मैंने खुशी में जिया है। सर्वस्व ने ये कहा कि अगर मुझे पता लगे कि मेरे आखिरी 24 घंटे हैं तो मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को जाके थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने मेरे को ज़िंदगी दी। उसके बाद और दोस्तों से मिलूँगा, बातचीत करूँगा, कुछ समय अपने साथ अकेले में गुजारूँगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि क्यों नहीं आज से शुरू कर देते ये सब? आज से अगर मैंने शुरू कर दिया कुछ काम कि किसी लोगों को 5 स्टार होटल में खाना खिलाने ले गया तो मेरी फंडिंग खत्म हो जाएगी और मेरी पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी कि मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। नहीं, आप मेहनत करेंगे तो आप यू विल बी केपेबल टू टेक देम इन 5 स्टार होटल। आई चैलेंज यू। थैंक यू सर। और एक और चीज़ मैं सोचता हूँ कि लाइफ में अगर जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे सबका प्लेसमेंट हो जाएगा, 30 कमाओगे, 40 कमाओगे या 50 कमाओगे, कभी लाइफ में कभी सोचना 10% अपनी कमाई का किसी को देना, और शायद अगर तुम लोग अपनी लाइफ का 10% किसी को दोगे तो हर एक इंसान खा के सोएगा और खुशी से सोएगा। वेरी गुड। We all have realized that we are actually becoming fearless when we are thinking about last 24 hours. So sir, मुझे लगता है कि अगर हम अभी तक fearless इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. So when we are thinking about last 24 hours, we are not thinking about what people will think about us, rather than we just doing what we want to achieve and what we want to do. That's what I'm saying. Yes. Hang on. अब आज से अब आप क्यों नहीं करने, उसमें करने में आपको क्या दिक्कत आएगी? जब अपने मन में अब आ गया कि today is the last day for rest of my life, can you do it from today now? Yes sir. Have you changed your thinking before you came in and now? Yes sir, now I'm more fearless. Very good. Chalo, I'm glad. So the guy, what he was feeling, I was also feeling the same heartbeat and all. But I want to say, I truly believe that giving something to the people who are less fortunate is the thing which will give you most of the happiness, which you can't get from anywhere. Like for example, I work in an NGO on Saturdays and Sundays. The feeling which I get from that work, I can't get it from anywhere. I am very thankful to my family for giving me this opportunity, that I go and I serve them, and my family is very happy that I am doing that work. Thank you. Very good, very good. Hold on for few minutes. हमने यही क्वेश्चन बाहर भी कुछ लोगों से पूछा और बहुत से लोगों ने अपने कुछ जवाब रिकॉर्ड किए हैं कि लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि अगर उनके पास 24 घंटे हो तो वो क्या करेंगे। आई थिंक आखिरी 24 घंटे होंगे लाइफ में तो क्या करना चाहूँगा, क्या अचीव करना चाहेंगे? मे बी प्रॉब्ली जस्ट ईट माई हार्ट आउट, जो खाना है खा लूँगा, एंड जो पीना है पी लूँगा. प्रॉब्ली आई जस्ट व्हाट डू आई डू लास्ट 24 घंटे में. आई थिंक I'll spend time with family, and party. That's it. सबसे पहले तो I'll fly to Delhi and eat मेरे मॉम के हाथ का खाना. Then we'll figure. तो 4 घंटे उसमें चले जाएंगे. बचे 20 घंटे. I don't know how long. I mean, I can't travel anywhere, but I think you just spend time with close friends and family. I think that's really important. अगर आखिरी 24 घंटे तो I'd like to be with people I really care about. वैसे तो 24 घंटे बचने के बाद भी पानी पाया भी, तो मुझे तो ये भी मालूम है कि पाने के बाद जो आया था तब कुछ नहीं लाया था, जाएगा तब क्या लेके जाएगा. तो मैं तो जो है मेरी दृष्टि है कि 24 घंटे होने के बाद भी आज भी मैं यही देखता हूँ कि दुनिया का कल्याण हो, अपने हाथ से समाज सेवा हो. तो 24 घंटे में और जितनी समाज सेवा होगी, जो भी मेरे हाथ से अच्छा कार्य होगा वही करूँगा. और अगर मेरी लाइफ में 24 आवर्स रह गए होंगे तो मैं पूरे दिन शॉपिंग करना चाहूँगी, जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम उतना.
मेरे को घूमने का बहुत शौक है, तो अगर मेरे को मिले कि 24 घंटे हैं और उसमें मैं दुनिया का कोना कोना घूम सकूं तो शायद मैं वो करूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे, आखिरी 24 घंटे अपने माँ बाप के और अपने भाई बहन के साथ बिताना चाहूँगा। आई थिंक द लास्ट 24 आवर्स ऑफ अ लाइफ आर द मोस्ट प्रेशियस आवर्स, बिकॉज उस समय हमें रियलाइज़ होता है कि हमने कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ नहीं की हैं अब तक। सो आई थिंक मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगी और वैसी चीज़ें करना चाहूँगी जो नॉर्मली मैं स्पॉन्टेनियसली नहीं करती। अगर मेरे पास सिर्फ 24 घंटे बाकी है, then what I would like to achieve is that I would like to teach as many children as I can who don't get a chance to go to school or who are underprivileged and have to work maybe. मैं ये चाहूँगी कि अगर मेरे पास सिर्फ 24 घंटे है और उस 24 घंटा मुझे किस तरह से गुजारने हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि जिनके पास बिल्कुल वक्त ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं, मैं उनके साथ गुजारना चाहूँगी। मेरा नाम है सिमरनजीत, और अगर एक दिन का कुछ रहेगा तो जो मेरे ड्रीम्स है पहले मैं वो फुलफ़िल करूँगा। अगर ज़िंदगी का एक ही दिन मेरे हाथ में बाकी है तो आई वुड लाइक टू डू समथिंग लाइक फ्री फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। एक आसमां से नीचे कूदना है मुझे, वो देखना है, वो फील लेना है मुझे ज़िंदगी का कि कैसे लगता है जब मैं दुनिया को पूरी ऊपर से देखता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी आयु भी इतनी नहीं है, लेकिन जितना ही मुझे समय मिले जीवन में, तो ऐसा कुछ करने की इच्छा है जिसमें देश की प्रगति हो, देश की उन्नति हो, देश का एक अच्छा भविष्य बने। उस विषय में मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास करूँगा। तो इसमें से कुछ चीज़ें निकल के आई। तुमने कहा कि ज़िंदगी का मुझे समझ में आएगा कि ये प्रेशियस मोमेंट्स हैं जो कि अब तक मैंने नहीं सोचा था। और दूसरी चीज़ निकल के आया कि मैं अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करूंगी, राइट, और मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है वो मैं काम करूंगी। एक लड़की ने कहा ना, आपने सुना होगा कि बाकी 24 घंटे बचे हैं, करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन उस समय मेरी प्रायोरिटी आज के दिन क्या है, बाकी वही काम मैं करूंगी। तीसरा, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करूंगी। ये लगभग 3 चीज़ें निकल के सामने आई। आपका क्वेश्चन है कि आखिरी 24 घंटे होंगे, तो या तो ये क्वेश्चन मेरे पास 8 साल पहले आया होता तो मैं इसका अच्छा आंसर देती। 8 years back I got married and now I am having the 2 kids. As a mother, how I can think कि I have a last 24 hours to live? ये प्रश्न आप जिस दिन शादी नहीं की उससे पहले भी आपको पूछना चाहिए था कि अब मेरे पास 24 घंटे बचे, अब उस दिन दिमाग में आएगा कि अब शादी करूं कि नहीं करूं। तो कोई गलत नहीं है, मेरा ये कहना है आप सब से, और जो लोग आप बैठे हुए हैं घर में और इस बात को देख रहे हैं, आप भी पूछिए अपने आप से कि अगर आप अब आज आपके 24 घंटे बाकी हैं ज़िंदगी के, अब से वो करना शुरू कर दीजिए जो आप वाकई जब समय पूरा हो जाएगा तब करने की सोचेंगे। और जब उस समय करने की सोचेंगे आपके पास समय नहीं होगा दोस्तों कुछ भी करने की। आपने ये कहा कि डर को दूर करना पड़ेगा अगर इंसान जीना चाहता है, और मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर इंसान उस 24 घंटे की वक़्त को ना समझे, कहीं ना कहीं मन में ये डर ज़रूर आता है कि सिर्फ 24 घंटे बचें, शायद वो तब ये सोचता है या सोचने पे मजबूर होता है कि मुझे अब इन 24 घंटों में क्या करना है। शायद यहाँ बैठे हुए कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सवाल अब सोचा होगा जब आपने ये उनसे पूछा कि 24 घंटे में आप क्या करोगे। तो अगर डर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया तो शायद इंसान अपनी ज़िंदगी में या उन 24 घंटों में कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए, आपके ख्याल से डर होना चाहिए तभी वो काम कर सकेगा, ऐसा आप कहना है? अच्छा, ठीक। नमस्ते सर, आपका क्वेश्चन है कि आखिरी 24 घंटे होंगे, तो या तो ये क्वेश्चन मेरे पास 8 साल पहले आया होता तो मैं इसका अच्छा आंसर देती। 8 years back I got married and now I am having the 2 kids. As a mother, how I can think कि I have a last 24 hours to live. और अगर ऐसा है बच्चों का मैं क्या करूं, या तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर जितनी इंश्योरेंस पॉलिसी मैं ले सकती हूँ, और उसमें आई हैव टू नॉमिनी माई किड्स बिकॉज आई हैव 2 kids 5 years and 3 years ओल्ड। तो मैं आप ही बताइए इसका आंसर एज ए मदर मैं क्या दूँ।
या तो 8 साल पहले मैं भी इन्हीं की एज में होती तो मैं इनका आंसर दे देती। मैं जवाब दूंगा आपको। Yes. सर जैसा टॉपिक है कि लास्ट 24 आवर्स तो धीरे धीरे डर ख़त्म हो रहा है, तो सर मैं लास्ट 24 आवर्स में मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आपसे कि मैं स्टेज पे आके आपसे एक बार हाथ मिलाना चाहता हूँ। अभी आपके 24 घंटे बचे हैं। आइए आइए, ज़रूर आइए। थैंक यू सर। आइए। यस, अरे भाई नहीं, डोंट मेक मी फील ओल्ड। अब ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी हो गई, अब कुछ भी चले जाएं तो कोई परवाह नहीं। क्या वाकई यही आपकी ख्वाहिश थी? यस सर, मैं शो अटेंड करने आया था तो तब ध्यान में आया? नहीं सर, एक मतलब दिल में ज़रूर बात थी कि आपसे हाथ मिलाने का मौका मिल जाए तो। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। सर मैं आपका शो देखती हूँ, उसमें ये है कि इच्छाओं का तो कभी कोई अंत नहीं है सर। तो मैं लास्ट 24 घंटों में भगवान ने मुझे जो दिया है, जो शायद मैं उतना डिज़र्व भी नहीं करती हूँ, उसने मुझे बहुत ज़्यादा दिया है। मैं उसका शुक्राना करूँगी और एक सेटिस्फाइड हैप्पी ह्यूमन बीइंग की तरह जाना चाहूँगी, ताकि अभी आपने कहा कि हम जैसे डेथ होती है वैसे ही जन्म लेते हैं, तो खुशी से जाऊँगी तो खुशी से पैदा होंगी। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से सर। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर की बात का जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा कि अगर मैं 10 साल या 15 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी, अगर उससे पहले ये सवाल पूछा जाता तो उनका जवाब अलग होता। आज क्योंकि वो शादीशुदा हैं, माँ हैं बच्चों की, आज उनका जवाब अलग है। और उनका मेरे से पूछना रहा कि आपका सोचना ठीक है या नहीं है। और आपने कहा कि मैं अभी जो मन में आता है कि मैं अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस करवा दूँ, जितना ज़्यादा कुछ उनके लिए छोड़ के जा सकूँ वो करूँ। तो ये ठीक है कि नहीं, यही प्रश्न था आपका। तो मैं आपको ये बात का जवाब फिर वापस जहाँ से हमने शुरू किया था वापस आता हूँ कि ज़िंदगी में हम क्या चाहते हैं। हम लोग सक्सेस चाहते हैं ज़िंदगी में, कामयाब ज़िंदगी हो, खुशी से ज़िंदगी गुज़रे और पीस ऑफ माइंड रहे। प्रोफेशनली चाहे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बिजनेसमैन बनना, मैं कामयाब हूँ जिस भी काम को करने के लिए आई एम सेट आउट टू बी। तो ये जो प्रश्न, मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ आपसे कि अगर ये प्रश्न आप जिस दिन शादी नहीं की उससे पहले भी आपको पूछना चाहिए था कि अब मेरे पास 24 घंटे बचे, अब उस दिन दिमाग में आएगा कि अब शादी करूं कि नहीं करूं। तो कोई गलत नहीं है, मेरा ये कहना है आप सब से, और जो लोग आप बैठे हुए हैं घर में और इस बात को देख रहे हैं, आप भी पूछिए अपने आप से कि अगर आप अब आज आपके 24 घंटे बाकी हैं ज़िंदगी के, अब से वो करना शुरू कर दीजिए जो आप वाकई जब समय पूरा हो जाएगा तब करने की सोचेंगे। और जब उस समय करने की सोचेंगे आपके पास समय नहीं होगा दोस्तों कुछ भी करने के लिए। सर प्रश्न तो नहीं, आपके विचार सुने मैंने, और आपकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सीखा कि अगर आपके मन में कुछ भी आए, अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़्यादा सोचें मत, तुरंत कह दें। आपकी बात सुनकर सर मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कुछ 2-4 लाइनें याद आ गई, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहना चाहूँगा। उन्होंने जीवन के उद्देश्य के बारे में कहा था, उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, सुख नहीं, धर्म नहीं, ना तो दर्शन है, विज्ञान ज्ञान बल नहीं, ना तो चिंतन है, जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। वेरी गुड, वेरी गुड। सर 1 घंटे से यहाँ बैठ के मैं ये सोच रही हूँ कि 6th स्टैंडर्ड में अल्फ्रेड टेनिसन की एक पोएम हमें पढ़ाई थी, द ब्रुक, जिसमें जो पोएट है उसने ह्यूमन लाइफ को रिवर के फ्लो से रिलेट किया है। कैसे रिवर बहती है, अपना रास्ता खुद काटती है, खुद बनाती है, और जितनी भी शैकल्स उसको बाइंड करते हैं उसको ब्रेक करके वो आगे मूव फॉरवर्ड करती है। वेरी गुड। साइड बाय साइड द पोएट आल्सो सेज दैट द रिवर मेक्स हर वे बट मेक्स पोएम याद है क्या आपको? चिंता मत करिए, आप डरेंगे नहीं तो याद आ जाएगी। सर लास्ट लाइंस है अच्छा, हाँ। उस पोएम के, फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई मे गो फॉर ऑन एंड ऑन। यस, so man may come, man may go, but I may go forever. I may go for on and on and on. सर इसमें बहुत अच्छे से पोएट ने डिस्क्राइब किया कि रिवर जब फ्लो करती है वो अपना रास्ता तो बनाती है, अपना फ्यूचर बनाती है, साइड बाय साइड जो आगे पीछे के बैंक्स होते हैं, एनवायरनमेंट होती है, उसको भी हैप्पी और ग्रीन करती है। तो हमारी लाइफ का भी वही पर्पस होना चाहिए,
जो आपकी अभी इतनी इंटरैक्शन है व्हाट आई हैव गॉट। तो क्या सीखा आज के इंटरेक्शन से आपने? कि हमें हर दिन में अपना 100% देना चाहिए Very good. और अपने आप को भी खुश रखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि हमारी लाइफ से इफेक्टेड जितने भी लोग हैं वो भी खुश हों। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस। There's a point that you mentioned, happiness being a choice. I strongly feel that happiness is a choice, and if I feel I choose to be happy, there's nothing in this world that can bring me down. And if I give this in charge to someone else, I may end up getting disappointed. So I might as well choose to be happy and not blame anyone else. Very good, very good. Death is always negative. Death is always the end. So rather than thinking this, why can't you think about that this is the first day of your life and think positive and think fresh? आपका मन नहीं करता है इस बात को यकीन करने के लिए, आप भी कभी जाएंगे, आपको भी डेथ आ सकती है या आएगी। जब ये होता है तो हम उसको फेस नहीं करना चाहते। Today is first day for rest of my life. That you will believe only when you end the first day. At the end करोगे तभी तो first शुरू होगा। So, as they say that today could be last day of my life, you will start living not only a meaningful life, but you will start moving out of your problems, your sorrows, your fears, your confusions, your unhappiness, and so many things you will get rid of. You will have money, you will have wealth, you will have good relationships around you, and you will have happiness around you. What more do you want? So you just told us that if it's our last day, we should not think of acceptance and everything. But if we take it as a last day and we know that we have to live it tomorrow also, so sometimes we want to do things which might not be accepted the next day we wake up and come back. So how should we face them? Like, if I want to live the way I want today, but tomorrow also I know that I will get up and have to face the same people I would not want to नहीं, see. देखिए, आपको यकीन करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि कल मैं नहीं उठूंगी। So, but what if I have to face those decisions I make today and tomorrow I will have to face their consequences when I get up? No, ठीक है, आपका डिसीजन डायनामिक होगा, ये मेरा यकीन दिलाता हूँ आपको। और कभी कुछ यकीन करके देखिए जिंदगी में। Thank you so much, sir. और कामयाबी मिलेगी आपको। Sir, I would like to ask you, those 24 hours which were the most difficult for you as an entrepreneur, and how did you spend those 24 hours in your life? मैंने आपको पहले कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में लगभग, मेरे को याद आता है कि लगभग 30 से 35 साल पहले से इस बात को डेली अपने आप को रिमाइंड करता हूँ कि टुडे इज़ माय लास्ट डे, और प्रयास करता हूँ कि अपना कोई काम पेंडिंग ना छोड़ूं। किसी को धमकाना हो तो भी, किसी को इफ़ आई हैव टू से आई लव यू माय फ्रेंड वो भी, कुछ काम बीच में जो भी करना हो, आई डेफिनेटली ट्राई टू कंप्लीट दैट। लेकिन कुछ मुश्किलें ज़िंदगी में बहुत बार आई हैं, एक बार की नहीं। मुझे तो लगता है कि जो मुश्किलें थी वो हर एक दूसरे से बड़ी थी उस समय में। जिस समय वो मुश्किल जो आई वो उस समय की सबसे बड़ी मुश्किल थी। तो इसलिए नहीं कह सकते कि ज़िंदगी की, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आप ज़रा ठीक काम कर पाएंगे। तो एक दिन ऐसा आया कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट से हमने कुछ नया बिजनेस पहली बार ज़िंदगी में शुरू किया था। अगेन फर्स्ट टाइम इन द कंट्री हमने पॉलीथीन के प्लास्टिक कवर्स फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए पहली बार देश में बनाए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। और उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने मुझे करीब 3 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट करना था, और उसने एक शाम को मुझे मना कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगा। वो अगले 24 घंटे मेरे लिए सबसे कठिन समय था।
और आपको हैरानगी होगी कि ये सफ़ेद बाल जो आगे हैं वो केवल 5 दिन के अंदर इतने सफ़ेद हो गए और वहीं रुक गए, क्योंकि 4-5 दिन में वो समस्या हल कर ली गई तो वो रुक भी गए वहीं पे। अब तो मेंटेन करता हूँ इसको ताकि वो याद रहे दिन और उससे सीखता रहे आदमी। तो वो 24 घंटे केवल इसी बात पे मैंने गुजारे कि किस प्रकार से मेरा फंडिंग कैसे हो ताकि मेरा प्रोजेक्ट चले। इसके अलावा मुझे कुछ ध्यान नहीं था। मेरा ख्याल से उस दिन शायद मैंने खाना खाया होगा कि नहीं खाया वो भी मुझे याद नहीं। बट आई हैव एंजॉयड एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ, दैट मच आई कैन टेल यू। Sir, the current position you are in, you have to take a lot of decisions on daily basis. So my question to you is whether you take all those decisions thinking that this is the last 24 hours of your life, that dynamic in your decision making, dynamism in your decision making, it's the same or not? Okay, I live in the present, that means, and also साथ साथ ये भी सोचता हूँ कि today is last day of my life, तो वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बदलता नहीं है। जो डिसीजन मेकिंग की थिंकिंग 10 साल पहले थी वो आज भी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं सैटरडे को ये सोचती हूँ कि मैं JIP जाऊँ, घूमने जाऊँ, तो मैं ये ऑब्ज़र्व करती हूँ कि रात में मैं डीप स्लीप नहीं होती। बट अगर मैं मंडे को रोज़ अपना रूटीन वर्क करती हूँ, रोज़ रूटीन अपना रोज़ाना वर्क करती हूँ, तो मैं आराम से डीप स्लीप करती हूँ। तो अगर मेरे पास 24 घंटे हो तो मैं अपना रूटीन वर्क ही करना चाहूँगी ताकि शांति से आपको नींद आ सके और आप खुश रह सकें। या सबसे बड़ी खुशी वही है जो अपना रूटीन वर्क करो, जो वर्क है आपका बस वही करो। वेरी गुड। रूटीन वर्क करें, लेकिन ये सोच के करें कि आज आखिरी दिन है, तो आप जो काम करेंगी आप बड़ा अच्छा करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। यस सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ऐसा सोचें, चलो आज हमने सोच लिया, बट सर कल उसको कैसे कंटिन्यू रखें ये बता दीजिए प्लीज। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। सर वो प्रैक्टिस छूट, अगर आपको इस बारे में और ज़्यादा बात डिस्कशन करनी हो तो हमारे अगले शो में भी आप आइए, बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लाइफ जो है, लाइफ को हम कहते हैं दिस इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? इज़ ए लाइफ। और आर्ट जो चीज़ है वो एकदम से घुट्टी पिला के आपके गले के नीचे नहीं डाल सकते, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगी। सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करें, ऐसा क्या लाए माइंड में जो वो चीज़ एकदम से उसी पीक पे आ जाए जो जैसा कि अब सोच रहे हैं हम लोग। ये बैठ जाइए, आपका जवाब दे रहा हूँ कि अब आज के मोमेंट से आप आज तो याद रखेंगे शाम तक, कल सुबह जब उठें आप भूल जाएं, कोई चीज़ में ध्यान आए, कोई एक्शन करने लगें, जब भूल जाएं तो फिर अपने आप को याद दिला दीजिए। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे याद करते जाएंगे, याद दिलाते रहेंगे, जब भूल जाएंगे अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, दैट विल बिकम योर वे ऑफ लाइफ, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर साइकी। आपकी बॉडी को पता लग जाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। जब आपको भूख लगती है तो क्या कोई याद दिलाता है? कोई आपको अपने आप आपका सिस्टम बता देता है कि भाई भूख लगी, अब खाना खाना चाहिए, अभी शावर लेना चाहिए, अभी प्यास लगी है, पानी पीना चाहिए। उसी प्रकार से आपकी नेचर बन जाएगी एक डायनामिज्म में आने की, डेली का काम डेली करने की, कोई भी चीज़ पेंडिंग ना रखने की, ईमानदारी से बात करने की, जो आपकी फीलिंग्स है उसको कह देने की। ये सब एक सिम्टम्स हैं जो कि सम टोटल ऑफ दैट विल मेक योर लाइफ होलसम, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। That is what this show is all about, to make you a perfect and at least as much as good human being as you can be. Sir, I'd like to disagree a little bit on what we are talking today, and like to agree what a gentleman said in the front row, that rather than thinking that it's the last day of your life and thinking about your death, you can think that probably this is the first day of your life, and start thinking positive, because you cannot equate death with positivity. Death is always negative. Death is always the end. So rather than thinking this, why can't you think about that this is the first day of your life and think positive and think fresh? What would you say about this? कामरान अकबर खान के लिए तालियां बजाइए। वेरी गुड क्वेश्चन।
एटलीस्ट खान साहब ने डिसएग्री तो किया, लेकिन आपसे मैं ये कहता हूँ खान साहब, और इस पे सोचिएगा ईमानदारी से, कि आपका मन नहीं करता है इस बात को यकीन करने के लिए आप भी कभी जाएंगे, आपको भी डेथ आ सकती है या आएगी। जब ये होता है तो हम उसको फेस नहीं करना चाहते, और हो सकता है आपके बिलीफ में यू मे नॉट बिलीव द रीबर्थ, लेकिन भारत की संस्कृति में रीबर्थ माना गया है, तो डेथ के बाद फिर बर्थ है। देयर इज नो एंडिंग। Here we are not talking about any ending. It's a ending to begin something new. That's why I told the professor that tomorrow is another new day. Yes, today is first day for rest of my life. That you will believe only when you end the first day. At the end करोगे तभी तो first शुरू होगा। ये मेरा कहना। पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। दूसरा सुख पास में हो माया, वेल्थ। तीसरा सुख गुणवंती नारी, अगर शादी करें या तो अच्छी पत्नी मिले या अच्छा घरवाला मिले। और चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी। इस ज़िंदगी में जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हैं, So what my view is, like एक बहुत अच्छी saying है that खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। So fear किस चीज़ का, डर किस चीज़ का, fear of failure। लेकिन we should not forget that failure is also something a part of learning. So if I talk about my 24 hours, I would say I will live my life. And relating to what you said, that's right now I have learned, it's not that I am thinking from past, that एक और saying है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। परले परले होएगी माने क्या है? सर बट डेथ याद कर रहा है ना कभी जो कहने वाला। Yes sir. So that's what if we implement this golden rule in our life. तो डेथ को याद करने से मतलब नहीं कि आप डरो उससे। At least accept that this is a reality which is going to happen. बैठिए बैठिए गुप्ता जी बैठिए, आपकी बात समझ गया मैं आपको ये बताता हूँ कि आप सब लोग एक प्रैक्टिस करिएगा। किसी दिन नींद नहीं आ रही हो रात को, आप क्या करते हैं नॉर्मली? या तो किसी को व्हाट्सएप करेंगे, रात को नींद नहीं आ रही, फ्रेंड क्या करूं, या किसी को फ्रेंड को फ़ोन करेंगी या करेंगे, या फाइट करेंगे अपने आप से, भाई नींद नहीं आ रही मुझे, क्यों नहीं आ रही नींद? और कोई मेरी ज़्यादा उम्र का होगा तो वो शायद थोड़ी स्लीपिंग पिल ले लेगा। लेकिन वो क्यों नहीं होता है, क्यों होता है ये? क्योंकि हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि हमको नींद नहीं आ रही। आप देखिएगा करके, एक बार एक्सेप्ट कर लें कि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस मोमेंट। जैसे आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको फ्यू सेकंड्स में नींद आ जाएगी। हमारी समस्या ही एक है कि हम रियलिटी को स्वीकार करना नहीं चाहते। मौत आना एक रियलिटी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो हम एक्शन करते हैं वो हम ऐसा करते हैं कि एज इफ मुझे तो ज़िंदगी में कभी जाना ही नहीं है यहाँ से, और कब जाना नहीं है तो जल्दी क्या है? खाओ पियो करो आनंद। आगे उल्टी गलत बात है तो इसलिए नहीं बोलूँगा, यहीं चुप कर जाऊँगा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। तो ये एक एटीट्यूड हमारा हो जाता है जिसकी वजह से हम आज का काम कल पे छोड़ देते हैं। मैथमेटिक्स अगर समझ में नहीं आता उससे घबराने लगते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं। जो सब्जेक्ट नहीं आता उससे दूर भागते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, भागो मत दूर, उससे फेस करो उसको, वो भागेगा आपके दूर, आपसे डर के। लेकिन फेस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा।
ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आज का काम आज करो, जो आपकी प्रायोरिटीज़, जैसे उसने क्या लिखा, इट फोर्सेस यू टू थिंक अबाउट योर प्रायोरिटीज़। बेकार के काम बीच में जो ज़िंदगी में दुनिया भर में हम करते हैं ना, वो हम करना छोड़ देंगे, समय बचेगा, टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा। इट फोर्सेस यू टू क्विट द थिंग्स विच वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी and concentrate on the most important things and people in your life. If you live that way, you will make better choices. You treasure each moment and suck the life out of every hour of your life. It removes the clutter and garbage so that which often chokes our lives. ये सब चीज़ें होंगी और इन्हीं चीज़ों से लाइफ आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेसफुल बनोगे। सो इसलिए आई से दैट अपनी लिस्ट तैयार करिए, आज ही तैयार करिए, उसके मुताबिक प्रायोरिटाइज करके उस पर काम करना शुरू कीजिए। इसी से ही आपको ज़िंदगी का सक्सेस का एक रिज़ल्ट मिलेगा। इसी के साथ ही प्रायोरिटीज़ में हम लोगों ने कहा, हमारे उपनिषदों में ये लिखा, बल्कि उन्होंने ज़िंदगी के प्रायोरिटीज़ भी बताई। पहला प्रायोरिटीज़ 4 किस्म की उन्होंने बताए। तो मुझे नहीं पता कि ये पर्पज़ किसी का ये रेलेवेंट नहीं है, पर फिर भी मेरे मन में आया तो इसलिए कह रहा हूँ। पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। दूसरा सुख पास में हो माया, वेल्थ। तीसरा सुख गुणवंती नारी, अगर शादी करें या तो अच्छी पत्नी मिले या अच्छा घरवाला मिले। और चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी। इस ज़िंदगी में जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हैं, ये बुज़ुर्गों ने 4 प्रायोरिटीज़ हमको दी हैं, उसके हिसाब से काम करें। अगर इन चारों प्रायोरिटीज़ में भी काम करेंगे तो भी लाइफ विल बी गुड एंड सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com। या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।